So tell us, how was your journey with Delhi Career Group while preparing? When we came out like journey, the first thing is getting enrolled, and the behavior of the staff, that is like getting you enrolled in the academy. So it was very good. The gestures that were provided to us very nice, and we can also say that people here, and whether it is staff or teachers, they're very cooperative, and they know where the person is lacking behind, and they help me with the personal time, gesturing me and like giving me some points that should be like encountered whether like you are giving the exam. Yeah, that is very important, because when you're preparing for a competitive exam, actually what is important is the right direction and somebody to tell you where you are lacking, Yeah. so that you can just bring up those points up and complete your preparation. Exactly. So very good at that. So you cleared your writtens first with the help of Delhi Career Group as a motivational force behind you. Yes, so we ma'am. are very happy to be a part of that. How did you come to know about Delhi Career Group? Actually, in the month of June 2020, I was searching through the net. My father said that this is a good institute to join, as they have achievers also. I've also seen the video of RMS Achiever, whose name was Kirsch, and I felt very inspired. Yes, I will join this institute and I will accomplish my goal. Very good, and you have proven Yes, your ma'am. words. So, once you entered DCG, how has been your experience, particularly with this like Sainik school students? They are very young at age, Yes, ma'am. and they are away from home. They need a different kind of atmosphere. Atmosphere. Do you feel that DCG fulfilled all your expectations? Obviously, ma'am. DCG fulfilled all our expectations, because from guidance till the what we want is currently there in the teachers. Our faculty members, our teachers, our judges, they gave it all the points which we need to have. They also taught us tricks to perform, how to solve the questions very easily within a seconds. Some questions were in our fingertips. When I was seeing the paper, I just did, yes, I can do all the questions. That is the confidence that a candidate needs to have, specifically if you are preparing for a competitive exam. Yes, ma'am. So we are happy to hear that we were of good help, and overall you had a good learning experience with Delhi Career Group. Yes, so that ma'am. is very encouraging for all those students who are aspiring to be in your place one day. बट एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू जैसे आपने स्टडी किया कोचिंग के थ्रू, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? सर बिकॉज उसका तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, बिकॉज आप जितना भी पढ़ते रहो आपको नहीं पता कि वो आप सही पढ़ रहे हो या नहीं। सर बट व्हेन वी टेक कोचिंग देन वी गेट अ प्रॉपर गाइडेंस अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट नॉट इज इंपॉर्टेंट। Okay. एंड सर देन अनदर मेजर पॉइंट इज दैट डाउट क्लियरेंस। ओके सर बिकॉज अब घर पर मैं पढ़ता रहता हूँ सर, गूगल पर भी इतना नहीं हो सकते डाउट क्लियर। हाँ जी। सर बट अगर 1-to-1 डाउट सेशन भी जब एंड के डेज में मेरे डाउट्स नहीं हो रहे थे क्लियर, तो फिर मैम से बात कर मैथ्स के स्पेशल 1-to-1 डाउट सेशंस भी करवाए थे, उससे बहुत हेल्प हुई। ठीक है, तो मीन्स आपका कहने का मतलब है कि जो आपने ऑनलाइन सेशन लिए वहाँ पर आपके डाउट रिमूवल सेशन भी आपके अलग से होते Yes, थे। sir. ठीक है, और कहीं ना कहीं जो एक ये आपने बताया है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है कि कितना पढ़ना है और Yes, क्या आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपका कोचिंग से पहले कुछ ऐसा था, कोई सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता था कि भी हाँ इस सब्जेक्ट में मेरा थोड़ा होल्ड कम है, और आफ्टर जो आपने कोचिंग लिया उसके बाद आपका उस सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी होल्ड काफ़ी अच्छा हुआ? ये सर एक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट था दैट आई वाज नॉट टू मच, मतलब मैं उसमें कमांड नहीं थी, बट सर उस कोचिंग के बाद सर ने ऐसे मेरे को ट्रिक्स बताई जो टाइम सेविंग भी थी और उससे जल्दी सॉल्व भी हो सकता था। तो जब आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट आपने दिया था इंडिया का, जब आप क्लियर नहीं हुआ था, तो इस बार जब Okay. आपने अटेम्प्ट दिया, इस बार आप दोनों के दोनों क्लियर कर गए हो, हाँ तो जी। मतलब क्या 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 डिफरेंस होता है कि जब आपने एक सेल्फ स्टडी करी और थोड़ा सा जैसे आपने कोचिंग ली है, तो उसमें हाँ। गाइडेंस में क्या फर्क मिला आपको, क्या हेल्प आउट मिला आपको पेपर क्लियर करने के लिए? सर बहुत डिफरेंस मिला था मुझे, मेरे इम्प्रूवमेंट में डिफरेंस दिखा कि मैं जब सेल्फ पढ़ता हूँ तब इम्प्रूवमेंट थोड़ी स्लोली अप जाती है, तो अगर जब गाइडेंस मिलती है तो फिर जो इम्प्रूवमेंट है वो शार्पली पूरा पूरा अप चली जाती है। और कोचिंग में ये भी फायदा हुआ था कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वो मेन बात है। अगर आपको जो हार्ड क्वेश्चन है वो आप पहले सॉल्व करने लगे तो फिर वो तो उसका आपका टाइम खा ही जाएंगे, उसको छोड़ दो लास्ट में करो, यही मेन टिप मुझे पसंद आई थी। ठीक है, तो अकेडमी की तरफ से आपको क्या हेल्प आउट मिली आपके पेपर को क्लियर करने के लिए? सर आपकी एकेडमी की तरफ से मुझे बहुत बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो उन्होंने मेरा 11th-12th का बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया, जिसकी वजह से मैं अपनी कैलकुलेशन भी इम्प्रूव कर पाया, जो मुझे बोर्ड में भी बहुत हेल्प हुआ था उसके लिए। और सेकेंडली ये पेपर अटेम्प्शन में क्या क्या ट्रिक हो सकती है, कितने
एक सम कितने टाइम में हो सकता है और कितने अलग अलग स्टेप्स में हो सकता है, ये सब भी बताया था। एक्चुअली सर मैं सीडीएस का एग्जाम ट्राई कर रही थी पहले भी क्लियर करने का, बट मेरे से हुआ नहीं था. आई कुडंट क्लियर दी 2019 सेकंड सीडीएस एग्जाम. Then I realized that I need a proper coaching. So I searched online and I found Delhi Career Group in Dwarka, Sector 7. So I went there, enrolled there. I had a 3-4 months course there. So I studied. और उसके बाद there is self study also. एग्जाम्स भी आए थे बीटेक के बीच में, बट वी हैव टू शेड्यूल आवर प्लान अकॉर्डिंगली. वहाँ पे डीसीजी में टीचर्स बहुत कंसिडरेट थे, दे यूज्ड टू टीच अस एंड काफी वेल मेंटेन्ड प्लान चलता था. जीके इंग्लिश पे बहुत अच्छे से फोकस किया था. सो दैट वाइज लाइकवाइज आई प्लान्ड माय शेड्यूल टू क्लियर सीडीएस एग्जाम. तो जैसे अभी आपने मेरे को एक चीज बताया कि आपने 2019 के अंदर भी एग्जाम को दिया था, बट वो आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आपने सेल्फ स्टडी के बेस पे दिया था. यस तो सर. आपको एक क्या बेसिक डिफरेंस नजर आया जब आपने सेल्फ स्टडी करके एग्जाम को दिया और जब आपने प्रॉपर कोचिंग लेके सीरियस के एग्जाम को दिया, तो आपको क्या एक सिमिलरिटी, क्या डिफरेंस नजर आता है मतलब? सर एक्चुअली जब हम खुद प्रिपेयर करते हैं तो कोई प्रॉपर गाइडेंस डायरेक्शन नहीं होती है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. तो मुझको पता नहीं था कि जीके बहुत वास्ट सिलेबस आता है जनरल साइंस का सीडीएस में. तो आई हैड नो क्लू कि कैसे स्टार्ट किया जाए. तो मैं बस वेगली पढ़ती थी, करंट अफेयर्स बुक्स ले ली थी जो मार्केट में अवेलेबल है, बट आई डिडंट नो कि कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है. बट देन व्हेन आई वेंट टू द कोचिंग क्लासेस तो पता चला कि अच्छा साइंस बहुत मेजर सेक्शन आता है, देन इट इज पॉलिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपैरेटिवली इजी टू डू एंड स्कोर वेल इन पॉलिटी एज वेल. सो आई ऑल्सो लर्न कि सिलेक्टिव स्टडी इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सीडीएस एग्जाम. हम सारे सब्जेक्ट्स नहीं कर सकते हैं, देर आर 8-9 सब्जेक्ट्स. तो इट इज बेटर टू जस्ट सिलेक्ट 3-4 सब्जेक्ट्स, हैव अ गुड कमांड ऑन देम और उसी को अच्छे से करना. आई कम फ्रॉम अ बीटेक बैकग्राउंड, तो साइंस मेरी स्ट्रॉन्ग थी. सो आई जस्ट मैंने मन लगा लिया था कि साइंस अच्छे से ब्रश अप करनी है, जो भी 12th तक पढ़ी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. उसके अलावा ज्योग्राफी और पॉलिटी 2 सब्जेक्ट मुझे लगे थे जो कंपैरेटिवली इजी थे और स्कोरिंग थे. तो उसके लिए आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑल्सो. वही कोचिंग में नोट्स मिलते थे एंड देयर वाज स्टडी मटेरियल ऑल्सो अवेलेबल टू अस दैट मेड अ लॉट, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट इन प्रिपरेशन.